Very pleasant morning to all my lovely students. Once again, welcome with the chapter number 24, Local Self-Government. We have done also 3 lectures on this chapter. It is your 4th lecture. Fine. So first I am explaining what topics we have discussed. First we have discussed about what is the meaning of the local self-government. Government work into the 3 levels, that is the federalism, central government, state government and local government. Fine. Now local self-government work into 2 levels. First is rural area and second is urban area. So rural administration we have discussed. Today's topic is urban administration. In rural administration we have discussed about the Gram Panchayat, Gram Sabha, what is the work of Gram Panchayat. After that we have also discussed the functions, what are the main functions of Panchayat, what is the relationship between state government and the Panchayati Raj, what is the role of women in Panchayat. After that what is the work of the land record maintenance, it is the work of Lekpal, Kanungo and it is also known as Patwali. Remember the सारी चीजों को याद रखेंगे. First we have discussed about the Patwali, then the Tehsildar and last the Deputy Commissioner. Fine. It is the chain which work in the villages in a proper manner. Some people are the elected and some are the appointed for the particular job by the government. So main work is the to flow of the work is very well and they will watch out and keep the eyes on the work of each other. Fine. So today's topic is urban administration, in which we will discuss about the municipal corporation, municipal council and city council. Fine. Before the starting this topic, one main topic is remaining here, inheritance law. Fine, it is in your book also. Inheritance law, Hindu Session Amendment Act 2005. ये जो लॉ पास हुआ कब हुआ था? 2005 में. When it was implemented in 2005. Now what is the main feature of this law? According to this act, after the death of the head of family, अगर family में head की death हो जाती है, then property is to be equally shared between his wife, sons and as well as daughters. Fine. तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका इक्वल शेयर होगा किसका? उसकी वाइफ का, उसके सन्स का एज वेल एज डॉटर्स. अब देखिए इससे पहले जो भी चीजें थी वो ये थी कि जो डॉटर्स थी उनका कोई शेयर नहीं होता था प्रॉपर्टी में. तो ये जो एक्ट पास किया गया जिससे किसकी कंडीशन इंप्रूव हुई? गर्ल्स की, वुमेन्स की. सो इस एक्ट को याद रखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एज द सन एज वेल एज द गर्ल्स. फाइन, डॉटर्स. Now next topic is our urban administration. As we have discussed the rural administration, उसमें हमने 3 लेवल किए थे. उन 3 लेवल्स में से सबसे पहला था आपका जिला परिषद, देन ब्लॉक पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत समिति. 3 लेवल से सेम थिंग. अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी 3 जो है लेवल है. सबसे पहला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज नगर निगम. नगर निगम कहा जाता है इसे हिंदी में. आपने बहुत सारी ऐसी गाड़ियां देखी अपने सराउंडिंग आती हैं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस पर लिखा हुआ आता है हिंदी में नगर निगम भी लिखा होता है. सेकंड है म्युनिसिपल काउंसिल या इसको हम कह सकते हैं म्युनिसिपलिटी. क्या कह सकते हैं? म्युनिसिपलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं नगर पालिका. क्या कहते हैं? नगर पालिका. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द सिटी काउंसिल. इट इज ऑल्सो नोन एज नगर पंचायत. नगर पंचायत. नाउ कि ये जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं ये सारा कहाँ पे होता है? सिटीज में. अर्बन का मतलब क्या होता है? सिटी. फाइन. तो किस किस सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी? कहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल
एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू योर बुक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से आपका टॉपिक है, पेज नंबर इज 204. फाइन. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरी आउट द अर्बन लोकल बॉडीज दैट आर कंस्टिट्यूटेड एज पर साइज ऑफ द टाउन एंड द सिटी इन इंडिया. कि उस टाउन का साइज क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी या म्युनिसिपलिटी होगी या फिर नगर पंचायत होगी. फाइन. The 74th Amendment Act of the Constitution of India mention 3 kind of the local solving bodies. अब यहाँ पर देखिए Amendment 74 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया उसमें इन तीनों बॉडीज की क्या की गई है, बात की गई है. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश होगी, कहाँ पर म्युनिसिपलिटी, कहाँ पर नगर पंचायत. फाइन. सो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. फाइन. हम बात कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं नगर निगम. फाइन. सो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, एक ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, 10 लाख या उससे ज्यादा हो, वहां पर कौन सा ऑर्गन काम करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. फाइन. बिग सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, ऐसी बड़ी सिटीज जहां पर 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश होगी. फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद हैव सच कॉर्पोरेशंस. ये जो बड़ी सिटीज है जिनकी population is the more than 10 lakhs, so there are the municipal corporations works. Fine. Then these are created by the act passed by their state legislature. जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उसके लिए एक्ट पास करते हैं. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी. सिटी का पूरा डेवलपमेंट का वर्क कौन देखता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. देन द provide the essential community services such as health, housing, electricity and water. अब देखिए यहाँ पे 4 चीजें हैं. इसका मेन वर्क क्या है, क्या क्या प्रोवाइड कराता है ये सिटीज में, किस चीज का ध्यान रखता है, एसेंशियल कम्युनिटीज यानी कि जो जरूरी चीजें. सबसे पहला इसमें बात की गई है हेल्थ, याद रखिए इसको हेल्थ. उसके बाद है आपका इसमें हाउसिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी and last is water. हमारी जो एसेंशियल नीड्स हैं सिटीज में रहने वाले लोगों की, वो पूरी करना किसका काम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का. ये सारे एसेंशियल हमारे हेल्थ, जिसमें आपका डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, हाउसिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का. ठीक है. तो ये सारा वर्क जो है वो किसका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का. नाउ कंपोजिशन मीन्स कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो किस किस को लेकर बना है, उसके मेंबर्स को क्या कहते हैं, उसके हेड को हम क्या कह सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड बाय द अडल्ट सिटीजन ऑफ द सिटी ऑफ द टर्म ऑफ 5 इयर्स. देखिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, सिटी के जो अडल्ट लोग, अडल्ट मीन्स 18 इयर्स एंड अबव हैज राइट टू वोट. वो सिटी में रहते हैं, उनको वो वोट देते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को. अब उसके लिए क्या किया जाता है, फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. सिटी को किस में डिवाइड किया जाता है, कुछ वार्ड्स में. आपका भी कोई वार्ड है, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप किस वार्ड के अंदर आते हैं और आपके जो वार्ड मेंबर्स हैं जिसको काउंसलर कहा जाता है वो कौन है. ठीक है. नेक्स्ट इज ईच वार्ड इलेक्ट अ मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हर एक से पहले तो सिटीज को डिवाइड कर दिया गया वार्ड्स में, वहां पर इलेक्शंस हुए और उसके बाद उस वार्ड से इलेक्टेड मेंबर, एक मेंबर को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा. एंड दिस मेंबर इज नोन एज द काउंसलर. और उस मेंबर को क्या कहा जाएगा, एज अ काउंसलर. फाइन. नेक्स्ट इज, ये तो हो गया इलेक्टेड जिसे हमने वोट दिया है, जिसे हमने जिताया है. फाइन. Corporations on the basis of universal adult franchise, यानी कि 18 years above सबके पास राइट टू वोट है.
Beside the elected members, there are some nominated members. देखिए यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं जो डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर. फाइन. These are known as the aldermen. क्या कहते हैं उन्हें? Aldermen. They are nominated and they are elected. Fine. इनको वोट दिया जाता है, ये डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं. Next is the head of the municipal corporation is known as mayor. अब जितने भी वार्ड्स हैं, सब इलेक्शंस हुआ, उनमें से एक हेड बनता है और उस हेड को कहा जाता है मेयर. क्या कहा जाता है? मेयर. फाइन. इतना आपको समझ में आया? सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होती है? वेयर द सिटी विच हैज द पॉपुलेशन मोर देन 10 lakh. फाइन. इसके बाद वहाँ पर जो सिटी है उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है. ईच वार्ड से मेंबर को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है. उस इलेक्ट मेंबर को क्या कहा जाता है? काउंसलर. फाइन. काउंसलर के बाद कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं. दे आर नोन एज द एल्डरमैन एंड द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जितने भी वार्ड्स हैं जिसमें से बहुत सारे मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है, उनके हेड को क्या कहेंगे? मेयर. फाइन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या कहेंगे? मेयर. ये चीजें याद रखेंगे. नेक्स्ट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अ म्युनिसिपल कमिश्नर. अब यहाँ पे बात हुई है म्युनिसिपल कमिश्नर की. म्युनिसिपल कमिश्नर. अब म्युनिसिपल कमिश्नर क्यों होता है या उससे इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है? The municipal corporations has a municipal commissioner, the chief executive officer who appointed by the state government. अब देखिए ये तो सारा इलेक्टेड बॉडी हो गया. अब इसके ऊपर एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है. चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जिसे कौन इलेक्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट. देखिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक फील्ड में, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है, अपना एक मेंबर अपॉइंट कर रही है जो बहुत एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड में. उसका मेन वर्क क्या होता है कि वो ये देखता है कि सभी लोग जो हैं अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं, वॉच आउट करते हैं, उन पर पूरी नजर रखी जाती है. By the way, it is the commissioner duty to ensure that decisions made by the corporations are implemented. कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसीजन ले रही है उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं. Then the commissioners also act the link between the state government and municipal. लिंक है. देखिए म्युनिसिपल कमिश्नर किसके लिए वर्क कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट कर रही है. यानी इट इज द वर्क ऑफ द इंटरमीडिएट बिटवीन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट. इनके बीच का वर्क कौन कर रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. यानी ये एक ऐसी बॉडी है जो इन दोनों को बैलेंस कर रही है, सारी इंफॉर्मेशन ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट के पास दे रही है. When problem arise with the ward, अगर किसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, the people who live there contact their respective counselor. अब हमने हमारे वार्ड से किसी मेंबर को इलेक्ट किया. अब हमारे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आई तो हम सीधा किसके पास जाएंगे? काउंसलर के पास जाएंगे. अपने वार्ड के काउंसलर के पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हमने उसे इलेक्ट किया तो ही और शी विल वर्क फॉर अस. उसकी ड्यूटी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. The tenure of the municipal corporation is 5 years. It can also be dissolved earlier if the failure of functions according to the rule. अब यहाँ पर वैसे तो उनका इलेक्शन कितने टाइम के लिए होता है? 5 years के लिए. बट अगर ये अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो 5 years से पहले ये डिसॉल्व भी हो सकती है. फाइन. सो हमने अभी किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में एंड द इनहेरिटेंस लॉ के बारे में. एक बार फिर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, जिसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटी, सिटी काउंसिल. अभी हमने एक पार्ट कंप्लीट किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. फाइन. ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 lakh, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है. सिटीज डिवाइडेड इनटू द वार्ड्स एंड वार्ड elected member is known as councillor and some members are nominated. They are known as the alderman and the head of the municipal corporation is known as mayor. Fine. Now about the municipal commissioner. Municipal commissioner is appointed by the state government. It is the chief executives. It watch out the work of municipal corporation. They are working very well or no. Fine.
So now next topic of your chapter is municipal council or municipality. Now we will look up for the municipality. Before starting the municipality, there is one remaining point is the what is the sources of the income of municipal corporation, कि क्या क्या sources होते हैं. Functions तो देखिए जो ग्राम पंचायत अपने वर्क करती है विलेजेस में, सेम वर्क उसके भी होते हैं किसके सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी मैंने कहा, हाउसिंग, ये सारा वर्क किसका होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नाउ हाउ दे गेट द फाइनेंस सपोर्ट फॉर देयर वर्क. वो इतना वर्क कराते हैं तो उसके लिए उनके पास मनी कहाँ से आता है. So chief sources of income of the municipal corporation are the taxes grant from the central and state government. अब यहाँ पे वो कई सारे taxes लेती है हमसे. कई बार आप you can see your electricity bill, आप अपना electricity bill देखिए, water का bill देखिए, उसमें कई सारे taxes add होते हैं. ये इन्हीं taxes से वो सारा जो work है वो run किया जाता है. So it is all about the municipal corporation. क्योंकि जयपुर बड़ा सिटी है, पॉपुलेशन की ज़्यादा है, तो देयर इज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए बातें. अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन द म्यूनिसिपैलिटी एंड द सिटी काउंसिल. फाइन, सो कीप रिमेंबर दिस पॉइंट.